Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and today's topic is going to be one of the most interesting topic because it's going to be about the friends that you thought were real but turned out to be real snakes. And I have been there. I know how it actually feels like. So I was like I should be sharing my experience with you guys, and I should let you know how it feels like when you are away from that toxic friendships and people and surroundings. So let's get into it. One thing I want you all guys to know before moving further is that toxic friendship is just not something that only affects your relationships or you. It affects your life the most. And ask me, like, because I know how it feels like when you are just stuck with friends who are actually not your friends and your life is falling apart. I know. Nothing is working out for you. Nothing, you are not able to do anything. You are stuck. I know how it feels and how I got out of that situation, and now I am the most happiest when it comes to relationships or making friends because I know what I don't want in my life. So, yeah. The first and the most important thing that you have to do is recognize. It's the first step toward getting that freedom from all the toxicity. Okay, if you have four, five, or six, or I don't know how many numbers of friends that you have in your life, आप just notice करो कि उनका behavior actually में कैसा है आपके साथ, उनकी family के साथ, उनके friends के साथ. उनका बिहेवियर बहुत कुछ बताता है उनके बारे में. अब आपका बिहेवियर आपके लिए बहुत कुछ बताता है. हाउ यू एक्चुअली आर, द वे यू ट्रीट योर फैमिली टेल्स अ लॉट अबाउट यू. एंड ये मतलब ये जो चीज़ है ना, द वे यू ट्रीट योर फैमिली टेल्स अ लॉट अबाउट यू. दिस इज समथिंग माई मॉम टोल्ड मी, एंड I mean, that's just so true. I have seen people treating their family like shit, and kuch time ke baad hi they even start treating their friends like that only because that's what they have learned. So when you see, when you notice, and when you एक्चुअली एनालाइज कि वो लोग कैसे हैं, वो कैसा उनका बिहेवियर है, हाउ द वे दे टॉक, द वे दे ट्रीट अदर्स, द वे दे आर, द वे दे टेक थिंग्स, आपको बहुत कुछ पता 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 चल जाएगा कि एक्चुअली में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है एंड यू डोंट वांट दैट इन योर फ्रेंडशिप. फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी फ्रेंडशिप्स में मुझे ना अ गुड लिसनर बहुत रेयरली मिलते हैं. लाइक मतलब ऐसे फ्रेंड्स तो डेफिनेटली मिलते हैं जो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, बट ऐसे फ्रेंड्स बहुत कम मिलते हैं जो आपकी सुनना चाहते हैं. तो इसलिए ना जब भी मेरे कोई फ्रेंड्स बनते हैं या जो मेरे ऑलरेडी फ्रेंड्स होते हैं या वॉट एवर, तो उनको ना मैं ट्राई करती हूँ अपनी सब बातें बताऊँ. लाइक एक्चुअली में रियल रियल बातें नहीं, रियल रियल इन द सेंस कि अपनी सब सीक्रेट्स रिवील कर दिया, ऐसा कुछ नहीं. बट ऐसा कि दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद मी, दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. एंड देन मैं देखती हूँ कि वो कितने एफर्ट्स ले रहे हैं उस चीज़, मतलब उस चीज़ के बारे में बात करने की. और वो उस, जब मैं उन्हें बता रही हूँ दिस इज समथिंग दैट हैपेंड विद मी एंड आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, एंड दे आर लाइक निधि इट्स ओके, इट हैपेंस विद यू. द वे दे आर टेकिंग ऑल दोज थिंग्स मैटर्स अ लॉट. अब मेरे साथ मोस्टली क्या होता है कि मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, दे आर लाइक कि ओह निधि ओके, दिस हैपेंड, या ठीक है ऐसा हो जाएगा, तुझे यही करना चाहिए. देन जस्ट टॉपिक चेंजेस एंड आई डोंट लाइक इट एट ऑल. आई लाइक एफर्ट्स, आई लव एफर्ट्स, एंड आई लव इट व्हेन the people in front of me is just there to listen. And listen के बाद, just listen is not, listening is just not enough. उसके बाद they are just there to talk with me about it. They are like, मतलब they are like confronting me, and they are like talking to me, and they are like understanding what I'm feeling. That is the best thing. Second most important step here is to tell them what is bothering you. अब जब ये चीज होती है ना, तो सिर्फ दो सिचुएशंस आती है अगर आप ऐसे बता दोगे तो. फर्स्ट इज कि दे विल अंडरस्टैंड और वो आपकी बातों को समझेंगे, एंड आपको भी वो कुछ ऐसा बता देंगे जो आप कर रहे हो और उनको बॉदर हो रहा है, एंड इट विल बी लाइक अ म्यूचुअल थिंग, और वो सॉर्ट आउट हो जाएगा. और उसके बाद आपका जो बॉन्ड होगा ना आपकी फ्रेंड के साथ, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. और लास्ट थिंग जो मोस्टली होता है, मेरे साथ भी वही हुआ, was दैट कि जब आप ये सब चीजें बताते हो ना, तो आपकी फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाती है. बिकॉज यू नो अपनी गलत चीजें किसको सुनना पसंद आता है. मतलब हम भी वैसे ही हैं कहीं ना कहीं. बट जब एक फ्रेंडशिप होती है, वो बहुत टाइम से होती है ना, तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग तो होती ही है कि यू डोंट वांट दैट बॉन्ड टू जस्ट गो अवे, बिकॉज इतनी सारी मेमोरीज है दैट यू जस्ट कांट. तो आप मेमोरीज हो या ना हो, यू हैव टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट, एंड यू हैव टू जस्ट टेल देम कि
this is something that's bothering me, and I want you to understand here because I want this friendship to last. And I hope you just understand. You just get it that what's bothering me, and you just are here to sort all these things out. So like a friend of mine which was like always there with me because we were in the same college and same tuitions and everything. So what happened now, what used to happen like in that friendship was she was never happy with me getting something like good in my life. तो जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होता था मैं उसे शेयर करती तो she was like never taking interest or never being very cheerful towards that. तो ये चीज़ ना मैंने नोटिस तो की थी बट मैंने कभी उसको चेंज नहीं किया बिकॉज आई वाज लाइक यार एक तो फ्रेंड है रहने दो, क्या चेंज करके अकेला थोड़ी हो जाना है, मतलब कॉलेज जाना है अच्छे से, मतलब फ्रेंड्स के साथ जाना है, अकेला थोड़ी हो जाना है। और वो चीज़ बहुत नॉर्मल है बिकॉज वो सबको लगता है कि यार अगर ये भी चले जाएगी फ्रेंड तो और कौन बचेगा, मतलब ये चीज़ लगती है। मुझे भी यही लग रहा था कि यार अभी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, अगर मैंने इसको बोल दिया और बोलने के बाद हमारा मतलब डिस्प्यूट्स हो गए तो फिर क्या होगा, फिर तो कोई फ्रेंडशिप्स रहेगी ही नहीं मेरी, मैं अकेली हो जाऊंगी। बट धीरे धीरे क्या हो गया ना, इतना बिल्डअप होती गई मेरे अंदर चीजें कि मुझसे रहा ही नहीं गया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बिहेव मतलब खुद के लिए ना थोड़ा स्टैंड लेना चालू कर दिया। इफ मतलब ये एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम, मतलब जब मेरी उससे फ्रेंडशिप मेरी उससे फ्रेंडशिप ब्रेक हो गई थी कंप्लीटली। उस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था कि मैंने ना एक परफ्यूम लगाया था एंड इट वाज लाइक अ बिट स्ट्रॉन्गर देन, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया वॉट एवर, मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा, मेरा फेवरेट था वो। और मैंने लगाया एंड हम लोग मूवी पे गए थे एंड शी टोल्ड मी दैट निधि दैट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तेरा परफ्यूम यार, तूने परफ्यूम लगाया है क्या, मुझे बहुत ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। एंड आई वाज लाइक कि यार देयर इज ऑलवेज अ वे। I mean, I am your friend. We have been friends from I think 2-3 years, and now you're treating me like this. अगर आपको थोड़ा इशू हो रहा है तो you just tell me निधि, ऐसा ऐसा है, या एक अच्छा वे भी होता है। I'm your friend, I'm not your enemy. Why are you treating me like that? तो मैंने ना उसको बोल दिया कि if that's the case, then I should sit somewhere else. तो मैंने ना बीच में एक चेयर को मतलब जो होता है ना एक, उसको छोड़ के साइड में मैं बैठ गई एंड दैट वाज द थिंग। और उसके बाद से वी नेवर एवर टॉक, लाइक हमने आज तक बात नहीं की। एंड तब से ना देर इज लाइक अ रिलीफ इन माई लाइफ, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट। या ये कोट तो आई थिंक हम सबने सुना है दैट व्हाट यू डोंट चेंज यू चूज, एंड दैट्स व्हाट आई चूज फॉर मी। कोई भी ओकेजन होता था ना आई वाज लाइक ऑल अलोन, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई नहीं था बिकॉज वही मेरी एक फ्रेंडशिप फ्रेंड थी और मैंने उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी, तो मैंने कोई और फ्रेंड्स बनाए भी नहीं बिकॉज आई वाज लाइक यार शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी, शी इज द वन एंड स्टफ। तो आई वाज लाइक ऑल द टाइम आई वाज ऑल अलोन। बट स्टिल मेरी फैमिली थी और मतलब आई वॉज ऑक्यूपाइड विथ माई वर्क एंड ऑल, तो मुझे इतना बॉदर नहीं किया। बट कहीं ना कहीं वो वॉइड तो फील होता ही है ना, मतलब जब सब लोग इवेंट्स एंड हर जगह जा रहे हैं आपके पास कोई नहीं है जाने के लिए, हाउ वर्स्ट इट फील्स लाइक, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट। अब कुछ टाइम इतना वर्स हो गया था ना मेरे साथ कि मैंने सोशलाइज करना ही बंद कर दिया था, लोगों से मिलना ही बंद कर दिया था। और आई एम अ पर्सन जो कभी भी फ्रेंडशिप के लिए खुद सामने से हाथ नहीं बढ़ाती है, लाइक मतलब मुझसे नहीं होता है। आई एम जस्ट समवन कि मुझसे आके फ्रेंडशिप करोगे ना आई विल बी लाइक हैप्पी टू, बट मैं खुद से सामने से आके करूँ दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल इन माई केस। सो मैंने नहीं किया, किसी से भी नहीं किया। आई वॉज लाइक जस्ट मी, जस्ट वन पर्सन एंड आई वॉज दैट्स इट, कोई नहीं था। बट व्हाट्स द बेस्ट थिंग, when that one thing went down rest of the things went up। मैंने कभी नहीं सोचा था that I will be able to do all the things that I did। Career growth, it was happening like crazy and I was getting better financially। मेरे relationships मेरी family के साथ बहुत अच्छे हो गए। Rest of the things just came up like मतलब as a content creator going on events बाहर and meeting people, even though वो friends नहीं थे but meeting people and getting to know how to socialize। सब चीजें इतनी रैंडमली स्टार्टेड हो गई ना चेंजिंग दैट मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि यार आई नेवर थॉट दिस ऑल थिंग्स कैन एवर हैपन टू मी। आई वाज सो स्टक इन दैट फ्रेंडशिप दैट बाकी सब चीजें भी वैसे ही नेगेटिव हो गई थी। बट जब मैंने वो एक चीज को लूज किया तो बाकी सब चीजें इतनी बेटर होने लगी ना कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई रेड दिस कोट समवेयर दैट व्हेन यू रिमूव टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स आउट ऑफ योर लाइफ the toxicity just goes away and you bloom, and that's just so true। मतलब quote as it is ऐसा नहीं था but I think you get what I'm trying to say here कि
सिर्फ फ्रेंडशिप ही नहीं, आपके लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स हैं जो अच्छे, मतलब आपको लग रहा है कि वो बिहेवियर टॉक्सिक है, वो चीजें सही नहीं है, आप नहीं चाहते कि आपको कोई ऐसा ट्रीट करे, तो यू हैव टू लेट दैट पर्सन नो दैट दिस इज नॉट द वे यू कैन ट्रीट मी, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ कि यू कैन टेक स्टैंड इन एनी फ्रेंडशिप और एनी थिंग। बिकॉज आप जो चीजें अलाउ कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, वो बहुत ज्यादा होगी और वो और मल्टीप्लाई होते जाएगा। अगर आप एक बैड बिहेवियर अलाउ करोगे ना, तो वो चीज और ज्यादा आएगी, आज नहीं तो कल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट स्टॉप ऑल दैट, बिकॉज आई फील दैट everyone deserves to be treated better. And when it comes to friendships are just there to be, not to be another battle of your life, but just to be the safe space or safe zone जहाँ पे आप अच्छा फील करो अपने बारे में और आप दूसरों को अच्छा फील कराओ, जहाँ पे आप बुरा नहीं फील करो. And the last step is letting it all go. I know it's tough, but believe me, nothing lasts forever. And this time, this vulnerable situation that you are in is also going to go away. You just have to take that step for yourself, for your betterment, because you have to let the universe know that I need better relationships in my life, which help me grow, which help me to feel the best about myself and to discover me, and which are not just another battle that I'm going to fight. Because you know, many times your family even can be toxic, and you don't get the chance to select your family, but you get the chance to select the people that you want to be with, your partner, your friendships, and everything. So why you are going to compromise yourself with that? These friendships are gonna come and go, but this is for life. Don't ever lose yourself for anyone. I hope this video felt like a tight hug to all the people who are in this situation or who were in this situation. I am so proud of you that you bravely, handled everything, because I know it takes a lot of guts to actually fight yourself and do something which is better for you in the long run. And I am just very happy for it. And thank you for watching the video till the end.